Smart City group. So I'll welcome all the participants for our today's event. So I'll like to request our President Tanvi Shetty to call the meeting to order. Meeting called to order. Okay, thank you. So before we begin, just few points. So throughout the session, please keep your microphones off. And if you have any questions, please free to put it in the chat box, or you can send the message or questions to me personally. We'll have a question and answer session towards the end. So please free to put your doubts. Now, for our today's webinar, we have a special guest, Mr. Amol Kulkarni. So I would like to request our Joint Secretary, Sushma Marava, to introduce our guest. Over to you, Sushma. Thank you so much, Gautami. Good afternoon, everyone. This is my absolute pleasure to do this, introduction for Mr. Amol Ram Kulkarni. And I believe that you all are very excited and, you want to listen up to him, that what he want to say to us. And this is going to be an absolute, very knowledgeable session. And again, I would take this opportunity to introduce Mr. Amol Ram Kulkarni. He is actually known as a clinical psychologist, consulting psychotherapist, and counselor trainer. He is also a motivator. He is also a yoga pranayam trainer. He is a physical fitness expert. And Amol Kulkarni is actually working since 2000 in the field of psychotherapy and counselor. He is founder director of Health View Manoved Psychological and Physical Healthcare Center, also a founder director of Chetana, a rehab center. He is consulting psychotherapist and a counselor. He is working in the field of positive psychosocial change and transformation for more than 16 years, has conducted more than 200 workshops, seminars, programs, and more than 500 lectures have been delivered for governmental, semi-governmental, social, industrial, and educational institutions. He has designed various modules of positive mental health for youths and effective parenting, learning skills, and study skills for the students. He has developed various diagnostics tools for academic skills. In his work, he is aiming at developing prevention aspects of emotional problems by enabling everybody and making them well equipped with all the coping skills and soft skills, and helping them to achieve success and adequate level of happiness they deserve in their life. I would like to, welcome Amol Kulkarni with a whole heart. Thank you so much, sir, for joining us here. Over to you. Thank you. Yes, thank you very much. I heartily welcome all of you, those who are present in this webinar. Am I audible, Gautami? Yes, sir, you are audible. Right, thank you. So, I have come to know that this webinar is on the background of World's Happiness Day. Yes, happiness is a very important aspect of life. But in general, are we really feel happy within? So before I start, I would like to start my session with one short documentary regarding happiness. In this short film, actually, the world's happiness report has been conducted, and the results are shown in the said documentary. So let's have a look on the documentary. आज खुश तो बहुत हो गया था, हार गया। I'm sorry, Mr. Bachchan, but लगता है आपने इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नहीं पढ़ी. Of all things that happened in 2018, UN की इस हैप्पीनेस रिपोर्ट ने मुझे काफी सैड किया. India is not even on the list of top 100 happiest nations. 156 देशों की इस लिस्ट में हमारी रैंक 133वीं है.
अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सभी सार्क कंट्री से पीछे हैं हम। अफगानिस्तान में तो चलो प्रॉब्लम्स हैं, बट हमसे कम डेवलप्ड हमारे पड़ोसीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूएन के अकॉर्डिंग ये सब हमसे ज्यादा खुश देश हैं। यूएन ने अपनी रैंकिंग पर कैपिटा इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन के बेसिस पर करी है। और हम लोग कलेक्टिवली एज अ नेशन सोशल सपोर्ट, जेनरोसिटी और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी में लैग करते हैं। बट सीरियसली इतने नाखुश हैं क्या हम लोग? और वैसे एक बात बताओ, ये हैप्पीनेस होती क्या है? यूएन को तो इसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रेकअप हुआ है या आप एग्जाम में फेल हुए हैं या फिर मैं ये वीडियो रात को 4 बजे शूट कर रहा हूं क्योंकि डेडलाइन मीट करनी है। तो ये बताइए, इंडियंस के लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू रेनोन्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा ब्रूटा, हर एज ग्रुप के अपने अलग अलग खुशी के मायने हैं। काफी ऑब्वियस ही बात है, आई नो, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि उन्होंने क्या बोला है। सीनियर इंडियंस फील हैप्पी इफ समवन टचेस देयर फीट टू पे देम रिस्पेक्ट। सीनियर मेल इंडियंस को खुशी मिलती है जॉइंट फैमिली से, खासकर कि इफ देयर बहू ट्रीट्स देम विद देयर ट्रेडिशनल स्पेशलिटी इन फूड। जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। I know, such progressive must wow. India may search for happiness in elders also lead them to the places of worship. Mandir, masjid, church, gurudwara, वगैरह वगैरह. Younger Indians are happy when they acquire new technology, latest mobile, bike, car, etc. Imagining themselves at par with the Western world, if not ahead of them. Young Indians nowadays also seek happiness in traveling and seeing the world. Gives us a sense of freedom, you see. But ये सब तो external factors हो गए, जिनके होने से खुशी और ना होने से sadness. Internal factors का क्या हम internally खुश हैं? UN की World Happiness Report की रैंकिंग को भूल जाते हैं for a minute. WHO के according, we are the most depressed country in the world, followed by China and the US. According to another report, in the last 10 years, the rate of anxiety and depression among corporate employees has increased by 45 to 50%. So much so that today, 42.5% of corporate employees in India suffer from depression. मतलब हर 2 में से ऑलमोस्ट एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। बट ये सीन क्या है यार? इतनी भसड़ क्यों है हम लोगों के जीवन में? मे बी बिकॉज हम लोगों के लिए लाइफ, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। तो हम लोग इस रैट रेस में भागते रहते हैं फॉर मोर मनी, फेम, रिकग्निशन, सोशल एक्सेप्टेंस एंड व्हाट नॉट। और जितना ज्यादा हम इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, उतना ज्यादा हम नाखुश हैं। हम इन चीजों के पीछे इतना ज्यादा इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है दैट वी ऑलवेज कंपेयर आवर लाइव्स टू दोज ऑफ अदर्स। और इससे इजाद हुई है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी, फोमो। अर्बन डिक्शनरी के हिसाब से फोमो और फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और इनसिक्योरिटी ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग आउट ऑन समथिंग एज एन इवेंट और एन अपॉर्चुनिटी। जैसे राइट। सो डियर फ्रेंड्स, हमने ये जो डॉक्यूमेंट्री थी उसका कुछ हिस्सा देखा जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स हमने देखे। एंड यस, वी आर अ मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। द क्वेश्चन इज ऑफ अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। देखिए, बच्चों से लेके बड़ों बूढ़ों तक सब कोई डिप्रेशन में है। कंसल्टिंग साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर सिंस लास्ट अराउंड 22 इयर्स। जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं ट्रीट तो करता हूं, उनको कुछ सलाह तो देता हूं, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि ये डिप्रेशन की फीलिंग है, वो डिप्रेशन की फीलिंग आना इतने बचपन से शुरू हुई है। उस रात में जब सो नहीं पाया, जब एक अराउंड 11 इयर्स की लड़की जो 5th और 6th स्टैंडर्ड की होगी, वो बोल रही है कि मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ। जब उसका जीना शुरू भी नहीं हुआ है, शी डोंट नो द मीनिंग ऑफ रियल लाइफ। अभी तो 11 साल की है, अभी तो वो पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई है, फिर भी वो बोल रही है कि आई एम फेड अप विथ माय लाइफ, आई एम फेड अप विथ माय फैमिली, आई एम फेड अप विथ द पीपल अराउंड मी। क्यों होता है ये? क्या है ये? इतने बचपन से जब हमें कोई चिंता की वजह भी नहीं है, इतने बचपन से अगर ये हो रहा है तो हमारा और आपका क्या होगा? ये तो हम सब किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रमाण से अनुभव भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो मेंटल हेल्थ है, mental health today is actually have become very crucial
और ये सबसे अहम एक मुद्दा हो गया पूरी सोसाइटी का कि मेंटल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में है, बहुत ज्यादा खतरे में है, जिसके लिए हमें, जिस प्रकार से हम ये कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें ये मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को नरिश करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिवली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि ये मेंटल हेल्थ क्या है, एंड लास्टली आई विल कम, जो बातें मैं आज थोड़ा जेनरिक आपको, आप सबको बताऊंगा। अम, जो भी कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जो भी कोई फॉर्मूलाज है, जो बेसिक फॉर्मूलाज टुवर्ड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, टू बी हैप्पी एंड टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, ये हम बात करेंगे। एंड फिर जो टॉपिक दिया गया है, जो हमारा इस वेबिनार का जो टीजर बना है, ब्रोशर बना है, उसमें जो लिखा है कि ये पेंडेमिक के सिचुएशन में भी हमें ये सारी चीजें कैसे बरकरार रखनी है, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो लेट अस go ahead with one PowerPoint presentation. Yes, positive mental health के बारे में हम कुछ जानेंगे। What is mental health? So WHO ने जो define किया है mental health को, that is a state of well-being in which the individual realizes that his or her own abilities, can cope with the normal stressors of life, can work productively, fruitfully, and is able to make contribution to his or her community. ये 2005 में चेंज की गई हुई डेफिनेशन है, जिसमें हमें ये जो एस्पेक्ट्स है बहुत सारे, कि जो कम्युनिटी में भी कंट्रीब्यूशन का होना, ये भी ऐड किया गया है। तो हम यहाँ, जाहिर है कि हमें हमारे मानसिक पूरी जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसका बैलेंस रखते हुए हमें आगे जाना है, हमें कोप अप करना है विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। उसके बाद वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, ये दोनों चीजें दर्ज की गई है। प्रोडक्टिविटी कम्स विद इन आवर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर पोटेंशियल, एंड फ्रूटफुल जो है वो है with the goal setting, with the motivation, accomplishment of the task or vision mission of the life। और ये करते करते हमारी खुद की तरक्की, हमारा विकास तो हो, लेकिन समाज के विकास में भी हमें कुछ हाथ बटाना है। इतनी बड़ी व्याख्या मेंटल हेल्थ की है। अभी समाज के लिए कुछ देने के लिए हमारे पास, हमें खुद देने के लिए तो कुछ होता है। तो लेट्स सी कि ये पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव साइकोलॉजी होनी है, इसका क्या मतलब है? ये मन क्या होता है? मन की प्रोसेसेस क्या है होती है? देखिए, अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को, तो वी डू हैव गॉट 3 कंपोनेंट्स ऑफ आवर लाइफ और आवर माइंड, यू कैन से। फर्स्ट component is a thought, second component is the feelings, emotions, and third component is our behavior or our actions। अभी ये जो तीनों components है, इसमें ये thought component and emotion component, we can say that thought is a brain or a head, and emotions is a heart or our feelings। So simply, और ये जो behavior है, behavior is always the outcome or output of the way we think and the way we feel। तो ये thoughts और emotions को हमारा behavior बहुत ही ज्यादा फॉलो करता है और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी होता है। तो ज्यादातर हमारे दिल को और हमारे दिमाग को बैलेंस करना, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव रहना। तो ये वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम हमेशा बोलते हैं कि यार दिल की बातें दिल से लो, दिमाग की बातें दिमाग से लो, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि दिल की बातें है क्या।
जज्बाती होना का क्या मतलब है, कहाँ रुकना है, और हमें ये भी पता होना है कि कहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है, कहाँ लॉजिकल थिंकिंग को प्रायोरिटी देनी है। ये सारे चीज को बैलेंस करना हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए, ये जो ये तीनों जो पॉइंट्स है, इसका अगर हम ट्राइंगल बनेगा ऐसे अगर हम मानते हैं, तो ये जो ट्राइंगल है, वन पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल इज आर थॉट्स, सेकेंड पॉइंट of this triangle, a mental health triangle, is emotions, and third triangle is of behavior. इसका जो बैलेंस है, जैसे हार्ट और हेड का तो बैलेंस है ही, लेकिन ये तीनों चीजों का बैलेंस अगर है, तो ये जो ट्रायंगल होगा, ये बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल होगा, समभुज इसको जो बोलते हैं हम, वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। और ये ट्रायंगल को अगर हम पिरामिड के तौर पे देखा जाए, अगर ये तीनों बिंदुओं में से एक एक लाइन खींच के, ये लाइन जब एक पिरामिड का एक जो टॉप का पॉइंट होगा, बिंदु होगा, वो अगर हम इमेजिन करते हैं, तो वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर होती है निर्भर हमारी हेल्थ। सबसे पहले हमारे पूरे थॉट्स और इमोशंस और बिहेवियर हो, इसका ट्रायंगल अगर इक्विलिब्रियम उनमें है, या अगर इक्वली जा रहे हैं, तो उसका जो मिडिल पॉइंट है टॉप का पिरामिड का, उसके ऊपर बसा करती है हमारी हेल्थ। मतलब के जब हेल्थ बिगड़ जाती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इसमें मैंने साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ में डिफरेंशिएट नहीं किया है, ये दोनों को मैं हेल्थ को संबोधन दे रहा हूँ। तो अगर हमारी हेल्थ किसी भी कारण बिगड़ जाती है, शारीरिक और मानसिक तौर पे, तो हमें ये समझ में आना होगा कि ये जो 3 पॉइंट्स है, ये जो 3 एस्पेक्ट्स है, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर, उसमें तीनों या फिर दोनों या फिर एक में कुछ गड़बड़ी है, तो फिर हमारा जो ट्रायंगल है, वो अभी इक्वल नहीं रहा है। उसके जो एंगल्स बदल गए, शायद बिहेवियर का एंगल खींच गया होगा, तो भी ये ऊपर का जो पॉइंट है जिसमें हेल्थ बसी है, वो गड़बड़ जाएगा। इमोशंस का एंगल खींच गया, तो भी ये हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। और थॉट्स का जो तो सबसे पहले है, सबसे बेसिक है, वो एंगल अगर बिगड़ गया, खींच गया, हम ज्यादा ही सोच रहे हैं, भावनाओं में कम पड़ गए और एक्शन में कम पड़ गए, तो भी हमारी हेल्थ उसमें गड़बड़ होने वाली है। या फिर कोई कोई ज्यादा से ज्यादा इमोशनल हो जाता है, दिमाग से सोचता नहीं है, और वर्तन में भी इमोशनल इन्फ्लुएंस ज्यादा होने के कारण जो भी कुछ करना जरूरी है, वो नहीं करता। या फिर तीसरा जो वर्तन है, वो अगर ज्यादा है, वो अगर खींचन अगर लिए जा रहे हैं, तो भी ये हमारा जो इक्वल ट्रायंगल है, और ये जो पिरामिड का जो मिडिल सेंटर से जो लाइन ऊपर जाके टॉप पे हमारी हेल्थ है, वो गड़बड़ हो सकती है। ये जो पिरामिड है, उसके पॉइंट के ऊपर सिर्फ हमारी हेल्थ ही नहीं रहती है, तो दूसरा जो है, जो हमारा ओवरऑल हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस भी उसी बिंदु पर निर्भर रहता है, अगर वो इक्वल है तो। थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर ना, हमें ये समझना अपने आप को जरूरी है, मेरे आगे के प्रेजेंटेशन में है, कि मेरा इमोशनल एस्पेक्ट एंगल कैसा है, मेरा थॉट वाला एस्पेक्ट एंगल कैसा है, और मेरा बिहेवियरल वाला एंगल कैसा है। ये हमें खुद को ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि वो अगर हमें समझेगा, तो ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस लेवल बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग आर दिस अवेयरनेस will convert into the positivity of our mind, our thoughts, which will increase our health, which will increase our level or degrees of happiness. तो उसी पिरामिड के ये बिंदु पे ना सिर्फ हेल्थ निर्भर है, हमारा हैप्पीनेस भी निर्भर है। और जब हैप्पीनेस ही सिर्फ निर्भर नहीं है, जो फीलिंग कंपोनेंट है, लेकिन हमारा जो सक्सेस कंपोनेंट है, वो भी इसी बिंदु पर निर्भर है। ये सक्सेस जो है, थॉट का कंपोनेंट है, कि हम किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से फिर उसी के अनुसार हमारे मन में भावनाओं का निर्माण होगा। ये ट्रायंगल को अगर हम
फिर एक बार गौर करेंगे तो इसमें जो ये थॉट कंपोनेंट है ना, दिस थॉट कंपोनेंट, इट इज ओरिजिनल इन इटसेल्फ। इसमें कभी कभी हमारा खुद का भी कंट्रोल नहीं होता है, हमें बहुत मास्टरी लानी पड़ेगी अपने विचारों को भी नियंत्रित करने के लिए। लेकिन वी से दैट थॉट्स आर ऑटोमेटिक, थॉट्स आ जाते हैं अपने आप, थॉट्स आर ओरिजिनल। वो एक स्वयंचलित ऐसी यंत्रणा है कि जो चल पड़ती है, निकल पड़ती है किसी भी दिशा में, किसी भी रुख, किसी भी सूरत में। लेकिन ये जो इमोशनल वाला कंपोनेंट है, वो इमोशन वाला कंपोनेंट अगर हम देखें तो इमोशंस पूरी के पूरी तरह से थॉट्स के ऊपर निर्भर है। मतलब कि जिस प्रकार के थॉट आएंगे, इमोशन विल फॉलो अकॉर्डिंगली। यानी अपने आप कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो विचार आ सकते हैं हमारे नियंत्रण से भी परे। लेकिन ये जो इमोशंस है, ये फीलिंग है, हम ऐसे बैठे बैठे अचानक हमें हैप्पीनेस महसूस हो रहा है, अचानक गुस्सा फील हो रहा है, ऐसे ये गुस्सा, हैप्पीनेस, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, ये अपने आप नहीं आती है। जरूरी है, नेसेसरी है कि हमारे विचारों में डिप्रेसिव थॉट्स अगर है तो ही डिप्रेशन आएगा। हमारे विचारों में कुछ एंग्शियस, फियरफुल थॉट्स अगर है तो एंजाइटी, फियर एंड फोबिया, ये फीलिंग्स उसके बाद आएगी। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये थॉट्स के ऊपर ही ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब बात इक्विलिब्रियम की आती है तो सिर्फ थॉट नहीं, हमें इमोशंस भी उतने ही जरूरी है जो थॉट्स को फॉलो करते हैं। फिर ये थॉट्स और इमोशंस दोनों मिलकर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बिहेवियर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द थॉट्स वी होल्ड एंड द इमोशंस वी होल्ड। हम जिस प्रकार से विचार करते हैं उस प्रकार से हम बनते जाते हैं, और इमोशंस एंड इमेजिनेशन, दे आर एडिंग अ फ्यूल इनटू इट। तो हेल्थ भी उसी पिरामिड के बिंदु के ऊपर है, हैप्पीनेस भी है एंड सक्सेस भी है। अभी ये जो बैलेंस हमें अगर रखना है तो इसके लिए चार पांच छोटी छोटी चीजें क्या है कि कम से कम जो बेसिक चीजें अगर हम अच्छी तरीके से अपने आप में इंडल्ज करें, देखें, बढ़ाए, तो ये इक्विलिब्रियम, ये बैलेंस हम ला सकते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले जो है वो है आपकी सेल्फ कंसेप्ट, आपकी स्व प्रतिमा। आप अपने आप के नजरों में क्या हो? दुनिया को भूल जाइए, दुनिया आपको क्या कहती है ये भूल जाइए। उसी के ऊपर तो हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मोग्याम्बो, है ना। हमारी इमोशंस भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है। लेकिन दूसरे हमारे साथ क्या बर्ताव करते हैं, उनके मन में हमारी क्या इमेज है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि हमारे खुद के मन में हमारी इमेज कैसी है, हमारी कंसेप्ट कैसी है, हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम हमारे बारे में क्या फील करते हैं। अगर यही गड़बड़ है कि सेल्फ कंसेप्ट में ही हम दो चांसेस हो सकते हैं कि एक तो हम खुद को बहुत ही कम, आगे एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, कम समझते हैं, या फिर हम अपने आप को बहुत शहाना, बहुत ज्यादा समझते हैं। इसी के ऊपर निर्भर होता है हमारा एटीट्यूड, हमारे दृष्टिकोण जो बनते हैं, हमारे जो एंगल, हमारे जो नजरिया बनता है, वो नजरिया सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में few sets of some life skills that should be learned, that should be achieved, वो ना सीखना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये तीनों चीजों से फिर बनती है हमारी लाइफस्टाइल। किस प्रकार का जीवन, लाइफस्टाइल मतलब कि मैं सिर्फ ड्रेसिंग सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन जीने का हमारा नजरिया, जीवन जीने का हमारा तरीका तय करते हैं।
और ये सारी चीजें हमारे सामने क्या लक्ष्य है, क्या गोल्स है, क्या उद्देश्य है, हमारा जीवन का अर्थ जिसको हम विजन बोलेंगे, व्हाट इज माय विजन ऑफ द लाइफ एंड व्हाट इज माय मिशन ऑफ द लाइफ, और जो पूरा करने के लिए मेरे पास मेरे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। बस सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीजें भी अगर आपके अंदर बहुत ही सक्षमता से आप इंडल्ज करते हो, बहुत ही पॉजिटिविटी से ये सारी चीजें आती है, तो ये इक्विलिब्रियम, ये बैलेंस होना बहुत संभव होता है। ये जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था कि खुद को जानना, ये इतना ज्यादा जरूरी है कि ना, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द लेटेंट स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ देयर नॉट देयर बॉडी, ऑफ देमसेल्व्स एक्चुअली, क्योंकि कॉन्फिडेंस अराइजेस विद द सेल्फ नॉलेज। कॉन्फिडेंस की एक सिंपल व्याख्या मैं करता हूं कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस इज सिंपली understanding what I can do and what I cannot do. A clear cut understanding of our own strengths and weaknesses is confidence, nothing else than that. So mental health, or positive mental health, can be achieved through personal and social adjustment only after realizing oneself. हमें ये खुद को जानना, हमारा जो भारत में जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो अध्यात्म है, वो अध्यात्म का शब्द ही है कि अधिआत्म, मतलब कि हमारे अंदर जो बैठे हुए आत्म जो है, जो आत्मा को धारण करता है, दैट इज सेल्फ। उसको आप सबसे पहले रखो, अहम रखो, उसको जानो, उसको पहचानो, खुद के थोड़े करीब आओ, इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंसेप्ट इज। ये जब आ जाता है तो दूसरी स्टेप जो है वो है खुद को हम जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है कि ये तो है कि हमने जान लिया हमारे लिमिटेशंस क्या है, हमारे कैपेबिलिटीज क्या है, और इफ वी स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट। मैस्लो एक बहुत ही रिनॉन्ड एंड बहुत ही फेमस सोशल साइकोलॉजिस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने आप में से किसी ने सुना भी होगा कि उन्होंने हायरार्किकल नीड्स की एक थियरी बताई है, जिसमें पिरामिड उन्होंने बताया है, और सेल्फ एस्टीम वाली जो नीड्स है वो बहुत ही अहम, सबसे ऊपर रखा है, और बताया है उन्होंने कि बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। जो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते वो दुखी, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमें अगर हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो पर्सन हु डज नॉट नो हिमसेल्फ इज मोर लाइकली टू बी डिप्रेस्ड, इज मोर लाइकली टू बी कंफ्यूज्ड, ही विल नॉट सेट, ही कैन नॉट अचीव द गोल्स इफ ही हैज। एटीट्यूड की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार के एटीट्यूड है। उसमें सबसे पहला एटीट्यूड होता है कि हमारा खुद की तरफ देखने का नजरिया। हम आईने में अपने आप को क्या देखते हैं, जैसे कि ये 2 पिक्चर्स आप देख पा रहे हो कि ये जो एक कैट है वो अपने आप को बहुत ही दुर्बल, बहुत ही फीबल, बहुत ही वीक महसूस कर रही है अंदर से, और दूसरी जो है वो अपने आप को लायन समझ रही है। अभी अगर देखा जाए तो आइडियली क्या है, तो मोटिवेशन या पॉजिटिव थिंकिंग में हम ये जानेंगे कि ये जो है ना, खुद को शेर समझना अच्छा है, लेकिन ताकत शेर की लाने के बावजूद भी हम जो है वो हमें खुद को समझना, ये सबसे आइडियल चीज होती है। क्योंकि ये जो 2 एटीट्यूड है, इसमें जो ये एटीट्यूड है कि खुद को बहुत ही कम समझना, ये हम देवदास वाला एटीट्यूड समझते हैं कि हम यहाँ अपने आप को जब कम समझने लगते हैं, इसका मतलब है हम दूसरों को हमारे खुद से ज्यादा समझते हैं, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा लकी, ये सारी चीजें समझने लगते हैं। जो फोमो की अभी बात हमने की है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, कि बाकी सारे लोग कुछ ना कुछ इतनी अच्छी चीजें कर रही है, probably I'm not able to do that, I'll miss out the most important and happy
पार्ट ऑफ द लाइफ, पीपल आर लिविंग इन माय लाइफ। ये वाला जो है इसको हम ये देवदास कैटेगरी वाला है कि खुद के नजर में खुद को बहुत कम समझना और दूसरों को अपने आप से बहुत ही ज्यादा, अपने आप से बहुत ऊंचाई वाला समझना। ये जो दूसरा है वो है कि हम जे जो है उसे हम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं, अपने आप की तरफ हमारा देखने का जो नजरिया है इन कंपैरेटिव टू अदर, हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, नॉलेजेबल समझते हैं, खुद को शहाना जब समझते हैं तो हम नेचुरली सामने वाले को कम समझेंगे। अभी ये जो सिचुएशन है ना खुद को कम समझने वाली, इसके इमोशनल आउटकम्स, इसके इमोशनल आउटपुट्स क्या होता है पता है? डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, ये सारी चीजें, दुख तो है पूरा, ये मेरा जीवन पूरा कागज पूरा रह गया, या फिर मेरी जिंदगी एक कटी पतंग वाली ये सिचुएशन, ये सीन है। ये सारे दुखियारे है ना, हम अपने आप को, अपने नसीब को कोसने वाले ये लोग हैं। अगर हम अपने आप को ही कम समझते हैं, अपनी तरफ देखने का हमारा खुद का नजरिया बहुत ही नीचा है, तो ये रिजल्ट है। यहाँ होता है कि हम अपने आप को दूसरों से ज्यादा समझते हैं जो है उससे, तो फिर दूसरों को जब कम हम समझते हैं तो फिर इसके इमोशनल आउटकम होते हैं एंगर, होस्टिलिटी, पावर प्ले, कि मैं जो कहूँ वो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवेंज ज्यादा आता है, यहाँ टीट फॉर टैट वाली जो सिचुएशन है वो आ जाती है। तो हम हमारे खुद के नजर में अपने आप को क्या समझते हैं उसके ऊपर हमारा एटीट्यूड टुवर्ड अदर पीपल डिसाइड होगा। जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझते हैं तो हम दूसरों को कम समझेंगे, तो दूसरों को हम ट्रस्ट नहीं दे पाएंगे, ट्रस्ट में इश्यूज आएंगे, हम जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हम उदास हो जाएंगे, हम फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और फिर हम आजू बाजू के लोग भी हमें डिप्रेस्ड करते हैं, वो एंग्री हमें करते हैं। ऐसे वाले चीजों के ऊपर हम दूसरों की तरफ देखने का हमारा नजरिया भी उसी प्रकार से होगा। अगर खुद की तरफ हम पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं तो हम दूसरों की तरफ भी पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना शुरू करेंगे और उनसे उस तरीके का पॉजिटिव पेश आना भी शुरू करेंगे। देखिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की ये बात है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी कब होगी? जब इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप अच्छी होगी तब। मतलब कि मेरा खुद का मेरे साथ रिश्ता जितना सुंदर है, जितना अधिक सक्षम है, सुंदर है, उतना मेरा दूसरों के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता सुंदर होगा। इफ वी आर गेटिंग एंग्री ऑन अदर्स, समझ लेना कि यू आर एंग्री विथ योरसेल्फ। इफ यू हेट अदर्स, समझ लेना यू आर हेटिंग योर ओन सेल्फ। तो खुद की तरफ देखने का नजरिया ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है दूसरों की तरफ देखने के नजरिए में। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो इसके दोनों के पॉजिटिविटी निगेटिविटी से एक तीसरा एंगल हमारे यहाँ भी ये ट्रायंगल, ये देखिए, खुद की तरफ देखने का हमारा नजरिया, दूसरों की तरफ देखने का नजरिया, और इसका तीसरा एंगल जो है वो है हमारी जो सिचुएशन है और द वर्ल्ड है उसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया। देखिए, ये इधर पॉजिटिव होगा पूरे के पूरा और निगेटिव होगा पूरा के पूरा, और इसकी शुरुआत जो होती है वो खुद से होती है। तो अगर हम खुद से ही नाखुश है तो हम लोगों से भी नाखुश होंगे और हम हमारी जिंदगी से नाखुश होना शुरू कर देंगे। ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा जग मेरे खिलाफ है, या दिस इज द प्लेस नॉट वर्थ लिविंग, ये सारी चीजें सोचकर पीपल दे आर कमिटिंग सुसाइड, दे आर गिविंग अप लिविंग द लाइफ। मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स है रिगार्डिंग दिस सुसाइड। जब वो सुशांत सिंह की हो गई थी तो बहुत सारे मेरे सीरीज ऑफ आर्टिकल्स आए थे
मैं गौतमी जो है उनसे वो शेयर कर सकता हूँ, शायद वो आप सबको दे दे, तो आप वो भी देखना कि मैं उस वो आर्टिकल में मैंने ये कहा है कि ऐसी क्या हालात होती है कि जहाँ मरना लोग आसान समझते हैं जीने से भी ज्यादा। जीना जीवन इतना कठिन क्यों हो जाता है कि वो मृत्यु को अपनाते हैं, वो उनको बहुत ही आसान और इजी लगता है, क्योंकि ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं हमारा एटीट्यूड की वजह से। ये जो तीसरा एंगल है उसके बाद जो मैंने एक वो बूमर रखा था उसमें था लाइफ स्किल्स। देखिए, हर एक एज में हर एक व्यक्ति ने लाइफ स्किल्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। These are few life skills I have just mentioned. उसमें है एंगर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्लानिंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, असर्टिवनेस जो है, ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है असर्टिवनेस। जो हम दो प्रकार के एटीट्यूड की बात करते आए हैं, जिसमें अगर हम खुद को कम समझते हैं तो विल बिकम पैसिव। जब बात करनी है तो कर नहीं पाते हैं, बाद में पछताते हैं, अरे मैंने तो ये बोलना जरूरी था, ये मैं बोल ही नहीं पाया। तो वी बिकम पैसिव, हम सह लेते हैं। और दूसरी तरफ जब हम खुद को कम समझना और दूसरों को खुद को ज्यादा समझना और दूसरों को कम समझने वाले एटीट्यूड में जब आ जाते हैं, तो फिर हम पैसिव नहीं रहते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। हमें ना पूरी तरह से आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन असर्टिव और एग्रेसिव के पैसिव और एग्रेसिव के बीच में आता है ये असर्टिव। इट इज बीइंग फर्म with our own intentions, but that intentions are not spoiling your own human rights, and they are not also spoiling the basic human rights of others. तो ये assertiveness अपने आप में बहुत बड़ा लाइफ स्किल है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी। ये सारी चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ये नेक्स्ट मेरे स्लाइड में ऐसी वाली चीजें हैं कि ना प्रिवेंशन एस्पेक्ट की जो बात हम करें, कि हम बहुत बार क्या करते हैं कि ना वी ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन, वी ट्राई टू अवॉइड द पीपल। हम है ना भाग जाते हैं, अपने आप से भी भागते रहते हैं, हम लोगों से भी भागते रहते हैं, हम कुछ ऐसी विपत्तियां ना आए इसलिए खुद को बचाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप ऑन स्टॉपिंग द बैड थिंग्स, उसके बजाय अगर हम अंदर से ही बुलेट प्रूफ हो जाते हैं। ये कोविड के सिचुएशन में मैंने एक न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस भी किया है, एंड दैट इज मेंटल इम्यून सिस्टम। अगर हम मन से ही इतने ताकतवर हो जाते हैं एंड वी ग्रो गुड थिंग्स विद इन अस, तो हमारी अगर सेल्फ एस्टीम अगर बढ़ जाती है, तो हमें एंगर मैनेजमेंट एंड डिप्रेशन मैनेजमेंट की कोई वैसे जरूरत ही नहीं है। तो ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो बात कही है कि ये जो पॉजिटिव लिविंग है, ये एक्चुअली में सीखना जरूरी है क्या, सीखना पड़ता है क्या, सीखना है क्या? तो इसका उत्तर तो ज्यादातर हाँ ही है, क्योंकि पैदाइशी ये सारे स्किल्स हम लेकर नहीं आते हैं, और आजकल के जमाने में तो ये सीखने की ही बात है। और कैन वी लर्न इट? यस, ऑफ कोर्स वी कैन लर्न पॉजिटिव लिविंग, वी कैन लर्न अ स्किल ऑफ लिविंग पॉजिटिव लाइफ, और वी कैन लर्न ऑल द लाइफ स्किल्स जो मैंने मेंशन किए। अगर आप चाहते हो तो सीख सकते हो। ये ऐसी बात है कि ये सीखना जरूरी क्यों है? नेचुरली भी ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर born with all the negative potential, negative ability। वो भी क्यों है? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग ही क्यों करते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक थियरी हो सकती है कि जो हमें समझना जरूरी है कि भाई वी आर बॉर्न नेगेटिव थिंकर्स। तो अभी तो हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि एक अपने आप में वो बहुत ही बड़ा और डिफरेंट टॉपिक है।
लेकिन जैसे कि एंगर मैनेजमेंट के वर्कशॉप्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, बुक्स है, लेकिन क्या हमने में से किसी एक ने भी हाउ टू बिकम एंग्री, हाउ टू रिएक्ट व्हेन वी आर एंग्री, ऐसे किसी ने सीखा है? बिल्कुल ही नहीं। लेकिन वी आर एक्सपर्ट इन दैट। हम गुस्सा होने में, वो टैंट्रम्स थ्रो करने में, हम वो गुस्से को जाहिर करने में, एक्सप्रेस करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट है, कहाँ से सीखा हमने? तो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव लिविंग आ जाती है अपने आप। पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव लिविंग का होना जरूरी है। जैसे कि ना, सुर में गाना, संगीत सीखना, ये सीखना पड़ता है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन चिल्लाना कैसे है, बेसुरा आवाज कैसे निकालना है, ये सीखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये इलैक्यूशन के जो स्किल्स होते हैं, नरेशंस के स्किल्स होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स होते हैं, ये सीखना जरूरी है। लेकिन इंसल्टिंग कैसे पेश आना है, ये हम इनबॉर्न ही जानते हैं। इसलिए ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आज के तारीख में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, गालियां देना हम सीख जाते हैं, लेकिन अच्छा बोलना हमें सीखना पड़ता है। तो यस, इट इज डेफिनेटली मैटर ऑफ लर्निंग, डिलिबरेटली लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग लाइफ स्किल्स। जब वो लाइफ स्किल्स की बात हम करते ही है, तो उसको जब स्किल्स बोला जाता है, तो ऑल द स्किल्स आर टू बी लर्नड एंड रेगुलरली प्रैक्टिस्ड। जैसे कि स्विमिंग इज अ स्किल, साइकिलिंग इज अ स्किल, ये सीखना जरूरी होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। इसलिए स्टडी स्किल्स, लाइफ स्किल्स, these all are skills and we need to learn that skills. अभी ये आता है कि थोड़ा जो जीवन शैली, लाइफस्टाइल की मैंने बात की थी उसके ऊपर, कि जैसा कि हमारे जीवन का ये जो वर्चुअल और सोशल मीडिया है, इसका इतना ज्यादा प्रभाव हो रहा है कि हमारी जो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल है, वो ये वर्चुअल वर्ल्ड के ही आगे पीछे मंडरा रही है, जिसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा सोचना जरूरी है। नॉट ओनली वी, मैं बहुत सारे वेबिनार्स में ऐसे भी वीडियोस दिखाता हूँ कि इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी किस कदर उनका ब्रेन, उनके ब्रेन की जो सेल्स है, all the neurotransmissive activities of the brain are getting influenced by any type of screen, any type of media. तो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जीवन शैली में एक बात जो है, जो हम लोग मिसिंग है, देखिए, वो है वैल्यू रिडन लाइफ, जो है कि हम जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, कोई उसको, कोई उसके दायरे नहीं है, कोई उसकी सीमाएं नहीं है। हमने तय भी नहीं किया है कि हमें किस प्रकार से जीना है। वो जीवन जीने के लिए मेरे वैल्यूज क्या है, दीज 4 और 5 वैल्यूज मेरे हैं, और उसी के आधार पर मैं जीवन जीता हूँ। इतनी ज्यादा बात ही हम नहीं करते। ये जो बात हो रही थी लाइफस्टाइल से पहले, लाइफ स्किल्स की बात हो रही थी। देखिए, सेल्फ एस्टीम, ये जो वर्ड है, वेरी फ्यू पीपल नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेल्फ एस्टीम। हम सुन चुके होते हैं, लेकिन हमने सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, सेल्फ एस्टीम क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द सेल्फ एस्टीम है, ये जानने की कोशिश भी नहीं की है। हमें कोई भी, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके वैल्यू, लेकिन हमें कहीं भी नहीं सिखाया गया है हाउ टू इंक्रीज आवर सेल्फ एस्टीम। ये जो लाइफ स्किल्स है ना, ये पूरा हमारा एकेडमिकल करिकुलम का पार्ट होना जरूरी है। चलिए, वो जब हो या ना हो, हमें आज से ये सीखना शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये जो फिटनेस है या भी हेल्थ है, बॉडी एंड माइंड की, ये जो है हमारे, यानी जो ह्यूमन बीइंग है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ये जो माइंड वाला कंपोनेंट है, जिसमें थॉट ये कंपोनेंट है, दैट वी हैव गॉट एडिशनल एक्स्ट्रा
than any kind of animal. तो इसके बदौलत हमारी पूरी जीवन की कुंडली ही बदल गई है बाकी प्राणियों से। तो हमारे यहाँ ये जो दो कंपोनेंट्स है, माइंड एंड बॉडी वाला कंपोनेंट, इसमें हम क्रॉस मोडालिटी जिसको बोलते हैं कि हमें अगर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है, बरकरार रखना है, तो वी नीड टू वर्क ऑन बॉडी, एंड इफ यू वांट टू फिजिकली फिट, you need to work on your mind. If we can maintain the fitness of our body, mental fitness automatically आ जाएगा, and if you can maintain mental fitness, ये physical fitness automatically आ जाएगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या फिर डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना, ये अपेरेंटली तो फिजिकल सिम्टम्स है ना, फिजिकल चीजें है। लेकिन जिसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि यार टेंशन मत लो, विच इज अगेन माइंड वाला कंपोनेंट। तो हमें अगर ये दोनों को हम डिलिबरेटली फिट एंड मेंटेन रखते हैं, तो वो एक दूसरे को फिट रखेंगे, एंड ओवरऑल आर हैप्पीनेस इंडेक्स विल ग्रो। क्योंकि हमारे लाइफ में जो है हमारे लाइफ में जो है ये दोनों पार्ट जो है, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, बोथ हैव गॉट इंपॉर्टेंस। बहुत लोग सक्सेस को ही हैप्पीनेस मानते हैं और बोलते हैं कि अगर मुझे सक्सेस मिल गया तो आई विल बी नेचुरली हैप्पी, अल्टीमेटली हैप्पी। लेकिन नहीं, सक्सेस ये ओवर बाहरी जग में एक्वायर करने वाली चीज है, जिसके लिए आपके एक्शंस, आपके डिसीजन मेकिंग, आपका सोशल स्किल्स, ये सारी के सारी चीजों का होना जरूरी है। whereas हैप्पीनेस लाइज विद इन, जिसमें फिर सोशल स्किल्स की जरूरत नहीं है, वो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप की जरूरत है। तो हैप्पीनेस ये अंदर होता है, अंदर वाला जो हैप्पीनेस कंपोनेंट अगर हम अच्छा रखते हैं, तो चांसेस आर देयर मोर कि हम सक्सेसफुल भी अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो लास्टली ये जो कंपोनेंट्स है हमारे, जो पहला वाला ट्रायंगल मैंने बताया था थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर का, वो अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, अच्छा रखते हैं, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन इज अगेन पिक्टोरियल थिंकिंग वी सी। तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव इमेजिनेशन, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पॉजिटिव एक्शंस विल मेक यू हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बैकग्राउंड में ये जो हमारा लेक्चर है जितना समय है, उसमें मैंने इन जनरल आपको बहुत सारी चीजें बताने का, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर प्रकाश डालने का मेरा अपना प्रयास किया है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी कोविड की जो सिचुएशन है, सेकेंड वेव आने को है, तो हमें ये करना है कि ये परिस्थिति को, जो मैंने जितने सारे मुद्दे बताए, वो सारे अगर हम अपने आप में इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली हम कोविड के सिचुएशन को भी ओवरकम करते हैं। जैसे कि दिस सिचुएशन इज, एक तरीके से देखा जाए तो विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दो तरीके से, कि एक तो वो वायरस कहाँ से आया, ओरिजिन कहाँ से है, क्या है, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, इट इज नॉट इन आवर हैंड। एंड सेकेंडली जो स्प्रेड हो रहा है, लोग जिस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है ऐसे हम मानते हैं, विच इज अगेन नॉट इन आवर हैंड। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे प्रिकॉशंस, हम खुद जो अभी अभियान चल रहे हैं ना कि मेरा परिवार मेरी जवाबदारी, मैं खुद मेरी जवाबदारी, मेरा मास्क, ये सारी जो चीजें हो रही है ज्यादातर पर्सनलाइज, वो हम कर सकते हैं। और एक बात आप पक्की तरीके से ध्यान रखना कि हमारे इम्यून सिस्टम का और हमारे थॉट्स एंड इमोशंस का बहुत ही ज्यादा संबंध है। जो लोग कोमॉर्बिडिटी जिसको बोला जाता है कि ऑलरेडी डायबिटिक है, ओल्ड एजेड है, वो तो वल्नरेबल है ही, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकली इमोशनली वीक है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्यून सिस्टम जिनकी वीक है, उनकी फिजिकल इम्यून सिस्टम को भी वीक पाया जा रहा है। और जिसका कोविड की सिचुएशन में
सिम्टोमेटिक होना, सिम्टम्स वर्स होना, इसमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। तो इसलिए ये तो चलता रहेगा, एपिडेमिक्स तो वैसे भी आके गए हैं। In our childhood days, we haven't experienced, but we have learned in the history, plague वगैरह आया था, similar kind of situations were there. उसके भी 2-3 waves आके गई थी। तो after every 50-60 years, pandemic they have been overburdening the society, लेकिन it is our responsibility to cope with it very positively and effectively. So stay safe, stay healthy, and stay happy. So thank you very much to all of you, to the organizers and all the participants who are present uh, over here. Thank you so much. Over to Gautami. आप क्वेश्चन आंसर अगर कुछ सेशंस है Yes. तो over to So thank you organizers. so Thank much, you so Amol much. sir, for this fantastic session. So we'll now move towards Q&As. So I'll ask participants, if you have any questions, please free to put your microphones on and ask it, or you can put it in the chat box too. Yes, yes. Hello. Hello. Yes. So it's Rotary Suyash Saundankar, and recently WHO and you know has launched that data about 2021 happiness index, and even we become even vulnerable about the happiness index. So what are the reasons behind that, and what can we do, or what can government or system can do for it? Right. अभी है ना, what are the reasons behind it, वो तो हमने उसमें भी देखे, और जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी उसके रीजंस है, और क्या करना चाहिए वो भी उसमें है। अभी आपका जो प्रश्न है कि व्हाट कैन गवर्नमेंट डू अबाउट इट, उसमें जो है ना, ये थोड़ी बात है कि बहुत सारी मेंटल हेल्थ पॉलिसीज अभी आ रही है, बहुत सारे बदलाव हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का अवेयरनेस बढ़ जाए, इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स है। रादर हमारा जो नया एजुकेशनल जो ये है ना, नए जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट आर बेस्ड ऑन ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये हमेशा मानता हूं कि गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम विल डू, दे शुड एक्चुअली डू समथिंग फॉर इट। बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स का होना ज्यादा जरूरी है। कि जैसे कि ने आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा किया, कि बहुत बार हम सोचते हैं कि इफ वी गॉट फिजिकली इल, वी डू नॉट हेजिटेट टू गो टू द डॉक्टर, लेकिन व्हेन वी आर साइकोलॉजिकली इल और सिक, तो हम जाते नहीं हैं। तो साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जब होता है ना, सुसाइड के जमाने में बहुत सारे वायरल होते हैं मैसेजेस की, इसलिए दोस्तों के साथ बात करो, दोस्तों के साथ बात करो। दोस्तों के साथ खुल के बात करना अच्छा ही है अपने आप में, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको बोलना समझना जरूरी है, क्योंकि द प्रोफेशनल द वे दे टॉक नॉन जजमेंटली, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइमल्टेनियसली ये जो लाइफ स्किल्स इंक्रीज करने की, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करने की प्रोसेस, यू गो थ्रू द बुक्स, टू गो थ्रू द सेमिनार्स, जो साइकोलॉजिकल पीपल जो है ना वो कंडक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख, राइट? So yes. Sir, there is one question in the chat box from another Rotaractor. Right. I have one question that what are the physical exercises to boost happiness? Basically, yoga type of physical exercises, they do help to maintain your psychological health or mental fitness. कोई भी एक्सरसाइज हो, जिमिंग हो, वो एरोबिक एक्सरसाइजेस हो, वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, स्पोर्ट्स हो, योगा हो, ये सारी चीजें हैं। वो दीज आर, एक्सरसाइज इज अ किलर ऑफ डिप्रेशन एंड एक्सरसाइज इज अ किलर ऑफ स्ट्रेस। तो लेकिन ये इट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल।
एक बार किया, 2 बार किया, ऐसे नहीं है, वो सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाते हैं। तो एनी गुड एक्सरसाइज इज गुड टू बूस्ट हैप्पीनेस एंड ओवरऑल मेंटल हेल्थ। ठीक है, लेकिन वो हैबिट होना जरूरी है। यस, सेकंड क्वेश्चन, how to handle peer pressure as it mostly leads to mental stress in teenagers. Not only mental stress, बहुत सारे गलत कामों की, गलत विवर्तन की शुरुआत भी यहाँ से ही होती है। उसमें ना सेल्फ एस्टीम का बढ़ाना, और जो मैंने असर्टिवनेस बोला है ना, यू शुड नो, यू शुड से नो टू एनीवन व्हेन यू वांट टू से नो। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हेन you want to say yes to anyone for any good thing, you need to learn to say yes. तो ये जो assertiveness component है ना, ये बहुत ज्यादा मिसिंग है। हम assertiveness के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है। तो assertiveness ट्रेनिंग ये peer प्रेशर को हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है। और जो सेल्फ एस्टीम की मैंने बात की, सेल्फ एस्टीम तो ऐसा एक बूस्टर है, ऐसी एक साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है कि वो सारे तकलीफों के लिए आपको मदद करती है। सेकंड ये सर, एट व्हाट पॉइंट शुड वन कंसीडर सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प? ये भी अच्छा प्रश्न है। बहुत बार हम वेट करते हैं, बहुत बार हम ट्राई आउट करते हैं, बहुत बार लोग ऐसे भी आते हैं कि आना पड़ा आपके यहाँ। एक्चुअली आना पड़ा वाला ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट मोमेंट, यू शुड सीक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। उसके लिए ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा सिजोफ्रेनिया, बहुत ही ज्यादा कुछ आप तकलीफ में होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से चीजें अगर हैंडल नहीं हो रही है, वहां आप डिप्रेशन है, आप ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरफ भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है, हाइपरसोमनिया है, इंसोमनिया है, या फिर अपेटाइट साइकिल जो है, भूख नहीं लग रही है, या फिर ज्यादा भूख लग रही है, ऐसे बायोलॉजिकल क्लॉक्स में डिस्टर्बेंस भी अगर है, तो दिस ऑल आर इंडिकेटर्स यू शुड गो टू द प्रोफेशनल, राइट? और कुछ? सर प्राजक्ता को एक क्वेश्चन है। प्राजक्ता, गो अहेड। राइट, Hello, am I audible? yes, प्राजक्ता, go ahead. Is that okay if I talk in Marathi or Hindi? हाँ, या Okay. सर माझा सगळ्यात पहिले प्रश्न हा होता की म्हणजे माझे 2 प्रश्न आहेत, सॉरी. सगळ्यात पहिले प्रश्न हा होता की बऱ्याचदा काय होतं की टीनेजर्सला किंवा माझ्यासारख्या लोकांना आम्हाला जायचं असतं किंवा आम्हाला काउन्सिलरकडे जायचं असतं, बट ॲज वी आर नॉट अर्निंग, सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट की अच्छा ओके, आपल्याला त्यांचे फीस पण द्यायचे आहेत, आपल्याला तो पण विचार करायचा वगैरे. तर ह्या गोष्टीमध्ये पण काही कधी कधी अडकतात. तर तेव्हा त्याच्यावरती काही सोल्युशन आहे किंवा काय आता कसं? याच्यामध्ये हा पहिला प्रश्न, तू सगळे विचार तुझे, मग मी एकत्रित उत्तर. ओके. आणि सेकंड थिंग इज, बऱ्याचदा काय होतं की ऍट अ टाइम खूप जास्त आपल्याला ना आपण जे मगाशी तुम्ही डिस्कस केलं की आपल्याला खूप जास्त हव्यास लागतात किंवा लाईक वी कॅन से की एखाद्याला खूप जास्त पैसे कमवायचे आयुष्यात किंवा खूप जास्त फेम हवाय, त्याला एक पर्टिक्युलर लेवल म्हणजे त्याने जे ठरवलं असतं तिथपर्यंत तो पोहोचतो, पण त्याला अजून जास्त हवं असतं. तर ते कंट्रोल कसं करायचं, हे 2 मेन प्रश्न होते. मी पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर देतो पहिल्यांदा, मग दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर दुसऱ्यांदा देतो. आता याच्यामध्ये ना मग मी थोडा हिंदीत आता शिफ्ट होतो प्राजक्ता, कारण मला ऑर्गनायझर्सने सांगितलं आहे की हिंदी आणि इंग्लिश अशामध्ये उत्तर देऊया. तो ना सबसे पहले आपका पहला जो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में कि टीनेजर से जो दोज हु आर नॉट अर्निंग, तो उसको आपको है ना कम्युनिकेशन स्किल्स विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल, कि आपको जिस बाकी सारी चीजों के लिए आप जिनके ऊपर निर्भर हो, खाने पीने के लिए, कॉलेज की फीस भरने के लिए, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर की फीस देने के लिए आप जिनके ऊपर निर्भर हो, ऑफ कोर्स ऑन योर पेरेंट्स, तो आपको पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा, ये कन्विंस करना पड़ेगा, और इसके लिए आपका और उनका रिलेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स ये ज्यादा रोल प्ले करेगा।
और मोस्टली इफ यू क्लियरली, यानी ना चिड़चिड़ होते हुए नहीं, एक ऐसे मौके पर अगर बहुत, यानी यहाँ ना अवेयरनेस का इतना, अवेयरनेस की इतनी कमी है कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, फीस भी भरते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि देखो तुम्हारे वजह से कितना खर्चा बढ़ गया, ये करना पड़ रहा है। लेकिन पेरेंट्स भी ये ना सोचे, लेकिन बहुत आप जैसे टीनेजर्स बहुत बहुत ऐसे हैं कि जो कभी-कभी हर्ट से, कभी-कभी मुश्किल से कन्विंस करके आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प की अभी उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इंक्रीज कम्युनिकेशन लेवल, कम्युनिकेशन पैटर्न विथ योर पेरेंट इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा जो है उसमें बहुत ज्यादा लोगों को एक महत्वाकांक्षी होते, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, क्योंकि सपने कभी पूरे ही नहीं होते। अचीव कर लिया फिर भी बड़ी गाड़ी, घर हो गया तो बड़ा घर, ये सारी चीज है। तो ये सारी जो चीज है ना, तो उसके लिए मैंने वहां अपने प्रेजेंटेशन में एक विजन मिशन स्टेटमेंट की जो बात की थी ना, तो आप किसी भी मुकाम पे हो, किसी भी एज में हो, कि आपको पूरी जिंदगी में क्या करना है, उसका एक प्लानिंग आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो प्लानिंग आप जब करते हो, उसके पहले सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं क्या चाहता हूँ और वो मैं क्यों चाहता हूँ। ये सारे स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप लॉजिकली, रैशनली समझ में आएगा कि मुझे कहाँ रुकना है। तो फर्स्ट स्टेप इज इंक्रीजिंग या सेल्फ अवेयरनेस कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद फिर आता है विजन मिशन ऑफ द लाइफ। इसमें कैसे है कि हमें कहाँ जाना है वो डिसाइड अगर हो गया, वहां क्यों जाना है वो डिसाइड हो गया, तो और कहीं चार जगह जाने की जरूरत ही नहीं रहती। मुझे क्या करना है ये पता हो गया, तो क्या नहीं करना है ये अपने आप आ जाता है। और ये जो है ना पैसे का या फिर सक्सेस का जो भूत सवार होता है ना, वो भी एक फीबल माइंडसेट का ही इंडिकेशन है कि अपने आप में सेटिस्फाइड न हो पाने का प्रॉब्लम उनको है। इसलिए विजन मिशन ना 13 साल की जो उम्र होती है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये एक इतनी आइडियल एज है कि हम बोलेंगे अरे यार कितने छोटे, लेकिन 13 इयर्स में विजन मिशन भी कम, यानी शुरुआत करना ये जरूरी होता है। जो 18 को आप गोल सेटिंग में जिसको बांध लेंगे, उसके पहले ये सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होना जरूरी है। तो कहाँ रुकना है ये तय करने के लिए, मुझे कहाँ और क्यों जाना है और मुझे कहाँ नहीं जाना है, ये पहले डिसाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्रेक लगाकर ही गाड़ी आप स्टार्ट करोगे तो ब्रेक लगेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है प्राजक्ता? यस सर, यस सर। राइट, और कोई? Any more questions from any participant? I had a question from my side, sir. So, what is the relation between happiness and intelligence? Is there any, and if it is so, what I mean, how can we work on that? राइट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड हैप्पीनेस। बेसिकली इंटेलिजेंस होता क्या है ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मेंटली रिटार्डेड है, जिसको हम लिमिटेड इंटेलिजेंस के तौर पे जानते हैं या फिर मानते हैं, हमारे साइकोलॉजी में हाल ही में एक नई ऐसी कंसेप्ट है कि एवरीबडी इज इंटेलिजेंट। वो किस चीज में इंटेलिजेंट है ये जानना हमारे लिए और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वैसे देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का और हैप्पीनेस का ऐसे कोई संबंध है नहीं। हाँ, लेकिन अगर इंटेलिजेंस ज्यादा से ज्यादा है तो हैप्पीनेस इंडेक्स कम होने की संभावना है। मतलब के आईक्यू एक जगह है और दूसरी जगह हम बोलते हैं ईक्यू, दैट इज इमोशनल कोशेंट। जब आईक्यू हाई होता है तो ईक्यू लो होने की संभावना भी है,
क्योंकि उसके विचार करने की गति, वर्सेटैलिटी ऑफ थिंकिंग ये ज्यादा होने के कारण इमोशन की ब्लेंड ऑफ इमोशन, रेंज ऑफ इमोशन दैट पर्सन में एक्सपीरियंस दैट द एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वाले जो लोग हैं उनसे ज्यादा। तो EQ से भी अभी ज्यादा, IQ से भी अभी ज्यादा EQ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोला जाता है कि IQ आपका कितना भी हो, आपका EQ ज्यादा होना जरूरी है। इसमें वो दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस भी है, लेकिन दिल को थोड़ा ज्यादा महत्व भी दिया गया है कि जो जैसे ना कि जो रैशनल थिंकिंग भी है लेकिन उसमें इमोशनल फ्लेवर भी है। इसलिए वो REBT आपने नाम सुना होगा, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग, जो अल्बर्ट इलिस ने लाई है, उसको अभी ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस इज एक्चुअली इंडिफरेंट टू द इंटेलिजेंस, लेकिन जिनको इंटेलिजेंस कम है या फिर ज्यादा है, उनको हैप्पीनेस के लिए, अपने आप का हैप्पीनेस मेंटेन करने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसी वाली चीज है। इंटेलिजेंस जिसमें फ्रंटल लोब में जो हायर मेंटल फंक्शनिंग है, इसकी एबिलिटी अगर आप में अगर ज्यादा है तो सक्सेस ओरिएंटेड चीजें करने की आपकी एबिलिटी ज्यादा है। इसका ये प्रमाण है। हैप्पीनेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, जो तो आपको कोई भी, क्योंकि ये कि ना इंटेलिजेंस हमारे हाथ में भी नहीं है, कोई भी इंटेलेक्चुअल लेवल आपकी कैपेसिटी हो, आपका IQ हो, हैप्पीनेस आपका अधिकार है। और IQ का और हैप्पीनेस का कोई प्रोपोर्शन नहीं कि हायर द IQ हायर विल बी द हैप्पीनेस लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप विथ योर ओन सेल्फ, irrespective of whatever IQ you have. Does anyone have any more questions? Okay, so I would like to request our Secretary Raghav Pagar Hello. to give vote of thanks. हेलो Yes. हाय राघव। अमोल सर, रातुल Hello, गांधी बात okay, कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बोला बोला। मुझे एक छोटा सा एक डाउट है सर, डाउट मतलब सजेशन है, आई वुड लाइक टू से मुझे आपने जो भी एक्सप्लेन किया वो सब अच्छा है, थेरोटिकली भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, समझो हम कभी पिछले 100 सालों का अगर कंपेयर करते हैं ना, तो हमारे दादाजी या नाना नानी जी वो ज्यादा खुश थे कंपेयर टू अस, क्योंकि इंडियन कल्चर जो है ना, जो स्पिरिचुअल बेस है और अपना जो नेचुरलनेस है ना, वो काफी अच्छा था, इसलिए मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस ज्यादा था, रादर देन अभी जो वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं और काफी सारा स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ अवेयरनेस कम है, इसलिए हैप्पीनेस कम होता है, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट डू यू लाइक टू से? ये मुद्दा तो बिल्कुल है, लेकिन उसको हम सिर्फ एंशिएंट टाइम और करंट टाइम में डायरेक्टली नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन आपने जो स्पिरिचुअलिटी बेस बात की, वो तो जाहिर है कि हमारा कल्चर वैल्यू सिस्टम में इतना ज्यादा रिच था, इसलिए मैंने जो मुद्दा उठाया ना कि वैल्यू बेस्ड लाइफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कल्चर हमारा था वो जरूर था, तो उसमें कंपैरेटिव टू वेस्टर्न कल्चर में वैल्यू सिस्टम का कोई रोल ही नहीं था। अभी अभी वो आ रहा है, तो ये मुद्दा तो बहुत ही ज्यादा बराबर है, लेकिन इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ओनली टाइम। पुराना जमाना और अभी का जमाना नहीं है, उसमें और कुछ ऐसी चीजें ऐड हो गई है कि जैसे मैं मेरे पेरेंटिंग के इसमें उसका जिक्र बहुत ज्यादा करता हूँ कि यार अभी जो हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन भी जिस कदर इवॉल्व हो रहा है ना, तो ब्रेन में इतना ज्यादा बदलाव हो रहा है, इसलिए भी अभी स्ट्रेस लेवल, ये जो टेंडेंसीज जो है वो नेचुरल नॉर्मल टेंडेंसीज जो है, लेकिन वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। जैसे कि माइलस्टोन्स होते थे, मतलब के फिजिकल डेवलपमेंट के कुछ माइलस्टोन्स बताए गए हैं कि एक बच्चा जब पैदा होगा तो वो आंख कब खोलेगा, वो नेक होल्डिंग कब करेगा, वो रेलने कब लगेगा, वो खड़ा होना कब ये करेगा। तो ये सारे जो माइलस्टोन्स है, मैं जब पढ़ रहा था एक 25-30 साल पहले, तब के हमारे माइलस्टोन की लिस्ट
और आज की माइलस्टोन की लिस्ट ही बदल गई है। बहुत सारी चीजें बच्चे करते ही नहीं है, डायरेक्टली सेकंड स्टेज पे आ गए हैं। अर्ली प्यूबर्टी पीरियड होना, ये सारी चीजें जो है कि हमारा ब्रेन इवॉल्व इस कदर हो रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। और जो आपने मुद्दा कहा वो भी है, तो ये दोनों का बैलेंस हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुझे ठीक है, राइट गौतमी? Okay, sir. Thanks. Okay. So any more questions or feedback or any suggestions or something? Okay, if not, so then I would like to request our Secretary Raghav Pagar to give vote of thanks. Over to you, Raghav. Thank you, Gautami. It is my honor to give my vote of thanks for this amazing session. Personally, I do know Amol sir from a very long time. He has been my guidance. He's given me his guidance for a very long time, and it has surely helped me in various factors. Uh, it is my request, if you have slightest problems about anything, please feel free to talk to your friends, your parents, anyone you know who can guide you through, or you can just consult sir. Sir is very good, I can guarantee you that. Apart from that, I would like to congratulate Gautami for hosting and leading this particular event very well. I would also like to thank all the people who are present in this session. So thank you all for coming here. Hope to see you all next time as well. Over to you, Gautami. Thank you, Raghav. Now I would like to request our President Tanvi to call the meeting to adjourn. Sir, thank you. You came and that was really very nice of the event. And for now, the meeting is called to adjourn. Over to you, Gautam. Yes. So unless you have any doubts or if you want to speak to sir, you I'll can request team members to wait, and others, if you want, you can leave. Right. Okay, bye, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बोला. Great job, guys. Yes, thank you. आपली attendance बरी होती. Thank you. I guess काही जण already left झालेत आपले. Last ला येता हा तेच लास्ट ला येता 11-12च्या 8 वर आलेत लगेच. हे आपल्याला नेक्स्ट मीटिंग मध्ये बोलावं लागेल. हेच लोक असे बाहेर पडत गेले हे इव्हेंट संपायच्या आधी तर काय. हो 29 लोक होते. सो नाईस वर्क. आणि